So we can start the Pathshala. Namo Arihantanam, Namo Sitanam, Namo Ayariyanam, Namo Uvachayanam, Namo Loe Savasahunam. Eso Panchanamokaro Sauva Pava Panasano Mangalanancha Sauvesim Padamam Havai Mangalam Dina Bhuvana Me Sar वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। सो आज हम ढाल 1 almost tried to complete it. So last week we have learned, right? Do you know what we did it last week? Anyone remember? हाँ ऋषभ, लास्ट वीक हमने क्या किया था? Last week. Yes, Nikita. Revised Dhal 1. Mm-hmm. I think we revised Dhal 1. Yes, we have started Dal 1, right? So we have started Dal 1, but I already told you means even though last week I entirely completed Dal 1, but I told you means how to read that one up. And Dal 1 is basically for what? मुझे कौन बताएगा Dal 1 में basic क्या है? The sufferings, and then Dhal 2 is the reason for sufferings. Dal 1 is the sufferings, right? हाँ, तो ये तो उसने ऐसे लिखा है, but that means I already told you how to read it. उसको पढ़ना कैसे है? So however in a Jinagam, right, everywhere there are two kinds of those, the method is always been working. जैसे I will give you an example. ठीक है ऋषभ, जैसे आपकी मम्मी कभी आप पे गुस्सा हो और वो बोले कि ऋषभ मर जा, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ ऋषभ, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी मम्मी ने गुस्से से बोला मर जा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ बदलना है। क्या एक गुस्से से आप कभी भी अपने मम्मी को परेशान करो, राइट, और अपनी मम्मी ने गुस्से से बोला मर जा, इसका मतलब क्या हुआ? कौन मुझे बताएगा? हैनित? Can you repeat the question? I didn't hear the question at all. You didn't get the question at all? Okay, Yeah. so I am talking about, that there is a methodology. There is because this is a Jinwani, right? So what is the Jinwani? It means that Jinendra Bhagwan said something. So whatever they said, it has been written. But how it has been written and whenever we interpret it, it's a two different thing. Okay, so we are talking about the how to interpret it. So I give an example. Sometimes that means your mom get angry, right? और वो जैसे ऋषभ की मम काफी एंग्री हुई और उसने ऋषभ को बोला मर जा, इसका मतलब क्या हुआ? जा मर जा, ऐसा नहीं बोलते गुस्से में, गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि जा मर जा। इसका मतलब क्या हुआ? He said Rishab's mom's angry at him for something. Okay, yeah, yeah, definitely. Her mom is his mom is angry, right? So उसने बोला कि मर जा, इसका मतलब क्या हुआ? हैनी, आप बताओ।
It means like go away. Go Like away, right? whatever I told you. Yes, go away, leave me, right? It doesn't mean that कि ऋषभ को अपने सुसाइड कर लेना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है ना, राइट हरित? इसका मतलब Yeah. क्या है कि हाँ, इसका मतलब ये है ना कि अभी यहाँ से चला जा, मुझे काफी गुस्सा है, यही उसका मतलब हुआ, राइट? राइट ऋषभ? Yeah. इसका मतलब ये हुआ कि ऋषभ को मरना चाहिए। कौन एग्री है कि ऋषभ को मरना चाहिए उसके लिए? हाँ, लेकिन अगर यही कॉन्वर्सेशंस लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा कि ऋषभ की मम्मी ने बोला ऋषभ मर जा। ओके, अब ऋषभ तो आज्ञाकारी बेटा है, तो ऋषभ को क्या करना चाहिए? ऋषभ, तुम अपनी मम्मी की हर बात को मानते हो, राइट? तो अब ऋषभ को क्या करना चाहिए? मर जाना चाहिए कि कुछ टाइम के लिए अपनी मम्मी को अकेला छोड़ देना चाहिए? अकेला छोड़ देना चाहिए। सही है, राइट? क्योंकि मम्मी परेशान है, तो जो लिखा गया तो ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन जब तुम पढ़ोगे, वेन एवर यू इंटरप्रिट इट, तो तुम्हें क्या समझना है, कैसे समझना है? सो यहाँ पे लिखा तो ऐसे ही जाएगा, तुम्हें कैसे समझना है, दैट आई टोल्ड यू लास्ट वीक। यहाँ पे लिखा ऐसे जाएगा कि सफरिंग है, तुम्हें क्या पढ़ना है, व्हाट यू हैव टू इंटरप्रेट। एनीत, आप बताओ, व्हाट वी हैव डिड इट लास्ट वीक। उसके बाद निकिता एंड So it basically means that you should like try to avoid whatever is happening like in the other gatis and try to go to moksha instead of just like crying over what's going to happen. ओके, और कौन बताएगा? पूर्वी जी, आप बताओ। Sorry, Saroji, can you repeat the question? Okay, so in a first dal, what is the method of interpret it? लिखा तो ये गया है कि ये पूरा सफरिंग है, but how we going to interpret it? I guess we have to see it like हमें अभी ये मिला है और बाकी सारे ये ऑप्शंस हैं, तो we get to choose which we want to work for. जैसे कि ये डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं और उनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इट्स टोटली अप टू अस. इट्स लाइक एन अवेयरनेस टू बी अवेयर कि हर डेस्टिनेशन में क्या क्या व्हाट इज वेटिंग फॉर अस, क्या पैकेज अवेलेबल है. इज इट लाइक दैट? So it's just an awareness that these are the different destinations that are available and this is what we come with. So we can Okay. make a conscious decision about where we want to go or how to avoid to go somewhere. Okay, very good, good try. अच्छा निकिता जी, निकिता आप बताओ। Okay, Hanit, Nikita, can you turn on your videos as well? Yes, Nikita. So you can tell me. That last week we have already learned, right? And we have completed this the TAL 1. So how we can read it? What I told you. Are you making a note? Who are making a notes? हाँ, तो note में से पढ़ के बताओ. I show you a method how to read TAL 1. And what is this? The TAL 1 is basically for what? Gatis. Okay, suffering for gatis. That is what is been written. But I only told you or teach you how to interpret it. And then after I gave you a homework, right? Using this the same methodology, now you will read the entire TAL 1.
Okay. I don't think so anyone has make a note. No worries. अगर नहीं make किया है तभी से करना start कर दो. ढाल 1 is related to our belief system, right? Here one, we are believing that any outer cause make us unhappy and make us unhappy, right? Means our happiness is depending on what? On outside circumstances. Is it true? Is it true? Yes or no? No, right? Yeah, so we do not have any dependency on the outside circumstances, okay? Why it is not? I also told you reasons as well. जिसको भी आता है अनम्यूट करके बोल सकते हैं, नो वरीज. So first reason, right? Because where I can only get an happiness where the happiness is lying off. So where happiness is lying, or where is the happiness stored? कहाँ पे है? सच्चा हाँ जी सुख तो बताइए. सच्चा सुख तो सम्यक दर्शन में ही है. एक्चुअल में हम पर संयोगों में मतलब ढूंढते हैं, बट वो सुख नहीं है. हाँ, तो सम्यक दर्शन में है, तो सम्यक दर्शन किसकी पर्याय है? ये सम्यक पर्याय दर्शन हुई ना? हाँ, ये हाँ, तो ये किसकी पर्याय है? कौन से द्रव्य की पर्याय है सबसे पहले? सबसे द्रव्य मीन्स जीव की पर्याय. एक्चुअल में जीव को ही होगा ना सम्यक दर्शन. हाँ, तो जीव क्यों होगा? सही है. हाँ. और कौन से जीव को होगा? जो सच्चे देव शास्त्र गुरु में श्रद्धा रखता हो, मतलब सच अटूट श्रद्धा रखता हो, एक्चुअल में उसे ही सम्यक दर्शन, वही कई सम्यक सारे दर्शन. जीव, हाँ कई सारे जीव सच्चे सच्चे देव गुरु शास्त्र में श्रद्धा रखते हैं. ठीक है. हाँ, तो यहाँ पे कौन से जीव की बात चल रही है? यहाँ हमारी खुद की जो मतलब क्या बोलना चाहिए, हाँ, आत्मा, हाँ, सोल हाँ, खुद और की. सोल. तुम अपने आप को चाहे सोल बोलो, आत्मा हाँ. बोलो, मैं बोलो, स्वयं बोलो, अपने आप को चाहे कुछ भी नाम दो, राइट? लेकिन यहाँ पे बात मेरी ही हो रही है. किसी दूसरे जीव से मेरा कोई संबंध नहीं है. वो सुखी हो या दुखी हो, उससे मुझे क्या? क्यों नहीं है? बताओ. दूसरे सोल से मेरा संबंध क्यों नहीं है? है नहीं. आपका ऋषभ के सोल से संबंध क्यों नहीं है? किस दृष्टि से संबंध नहीं है? मेरा संबंध नहीं है क्योंकि वो अलग सोल और मैं अलग सोल हूँ. और फिर हाँ. मेरे को अगर जैसे वो मेरा रिलेटिव था भी पहले, तब मेरे को याद नहीं है, तो मेरे पास संबंध है नहीं. पता है मैंने कैसे संबंध नहीं है बात किया? क्योंकि अगर ऋषभ की टांग टूटे तो दुख तुम्हें होगा कि ऋषभ को होगा? ऋषभ को. ओके. हाँ, तो तुम ऋषभ दुखी हो रहा है ये जान सकते हो कि फील भी कर सकते हो? सिर्फ मैं जान सकता हूँ, अगर वो बताता है तो. फील में नहीं कर सकता. फील नहीं कर सकता, राइट? तो अगर तुम फील नहीं कर सकते, उस हिसाब से तुम्हारा ऋषभ से कोई संबंध नहीं है. ठीक है. हाँ, जानने से है कि तुम जान सकते हो. जैसे तुम अपने मम्मी पापा को जानते हो, अपने भाई बहन को जानते हो, तुम किसी को भी जानते हो, राइट? तो जानने से कोई इश्यू नहीं है. हम लोग क्या नहीं कर सकते? फील नहीं कर सकते. तो केवली भगवान इस नरक में जितने भी लोग हैं उसके दुख को जान सकते हैं क्या? हाँ, जान सकते हैं पर फील नहीं कर सकते. फील नहीं कर सकते. वेरी गुड. क्यों फील नहीं कर सकते?
बताओ, फील नहीं कर सकते, क्यों फील नहीं कर सकते? निकिता, आप बताओ, अगर आपकी मम्मी के दांत में दुख हो रहा है तो आप जान सकती हो, राइट? यू नो दैट योर मम्मी इन ए पेन, राइट? लेकिन आप उसका पेन फील नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? Because you're not in her body. हम्म You're not in her body. You are not in her body. Okay. Even though if you are in her body, then you know that right now there are so many bacteria in our body, so many jeeves in our body, right? Do they all feel the same way you feel? No. So even though you are in her body, okay, अगर आप अपनी मम्मी के बॉडी में चलो चले भी जाओ, फिर भी आप अब उसका तब तो आप उसका फील, उसका जो पेन है उसको फील कर सकोगी, राइट कि नहीं? हम्म चलो हम आपको ये पावर भी दे देते हैं कि आप उसकी बॉडी में चले जाओ, फिर भी वो जो पेन है वो आप फील कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे? इसका आंसर कौन मुझे बताएगा? अर्णव, आप बताओ। Um, मैंने ना लास्ट वीक में रीजन बताया था कि हम ना क्यों फील नहीं कर सकते। किसने नोट लिखा है क्या? ना यू कैन रीड योर नोट्स। इसलिए नहीं होएगा because हमको पता है because it's not our body, so we don't so we won't care that much about it. It's not us. So It like is not to care about it, even though if you care it, but you can't even feel it. yeah, but it's not affecting us that much. I mean, we can, and then like if you're in the body, we know after some time it will pass because we feel like I'm in your body, it'll pass after some time, and then if it's like we can't stand. Wait, Mhm. never mind. No, no, no worries, because here we are all thinking aloud, right? हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, हम अपना थिंकिंग प्रोसेस है, वी आर थिंकिंग अलाउड, डोंट वरी अबाउट इट। You are right or wrong, it is not an issue. Here one it is, we all here to learn। ठीक है। सो क्यों हम नहीं फील कर सकते? क्योंकि जो हैप्पीनेस है ना, वो हमारा कौन सा गुण है? ही इज अवर एट्रीब्यूट, राइट? वो अपना एक गुण है, वो सुख गुण है। और अनहैप्पी है ना, वो सुख गुण की विभावी पर्याय है। विभाव यानी कि जो उसकी नेचुरल नहीं है। ओके, अननेचुरल मॉडिफिकेशन है उसका। किसका अननेचुरल मॉडिफिकेशन है? सुख का। ओके, तो जब तुम्हें सुख नाम के गुण का अननेचुरल यानी कि विभाव होगा, तभी तुम्हें दुख महसूस होगा। उसके अलावा तुम दुख महसूस नहीं कर पाओगे। और केवली भगवान है ना, तो उनकी तो सुख की उसमें भी सुख नाम का गुण है, लेकिन उसमें अब विभाव नहीं रहा। अब तो वो उसका सुख जो है गुण, वो कैसे मॉडिफिकेशंस हो रहा है उसमें? स्वभाव से ही मॉडिफिकेशंस, यानी कि उसकी जो जितनी भी सारी पर्याय आ रही है ना, वो स्वभाव के अनुरूप से ही आ रही है। तब उसमें कोई दुख ही है ही नहीं। तो वो नारकियों का दुख जान सकते हैं, लेकिन उसका दुख फील नहीं कर सकते, क्योंकि फीलिंग के लिए उनको कौन सा गुण चाहिए? सुख, राइट? और अब उनका सुख गुण तो पॉजिटिवली वर्क कर रहा है, स्वभाव के हिसाब से ही वर्क कर रहा है। और अपना जो सुख गुण है, वो स्वभाव विभाव दोनों हिसाब से वर्क कर रहा है। पता है, जब अपना स्वभाव में होता है ना, तो बाहर में चाहे कितना भी दुख होना, में दुख नहीं लगता, हमें दुख ही नहीं लगता। आई विल गिव एन एग्जाम्पल, राइट? सो
how many of you watched any kind of दोस्त एक्शन मूवी? एक्शन मूवी किस किसने देखा है? अर्णव, आप एक्शन मूवी देखते हो क्या जिसमें फाइटिंग सीन होता हो? राइट हनी, ऋषभ? Sometimes, yes. समटाइम्स यस, बट यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड, ठीक है? Yeah. या हाँ, तो उसमें विलन एंड हीरो के बीच में फाइट होती है, जबरदस्त फाइट चल रही है मान लो, और विलन जो है ना वो हीरो को धो रहा है। हम्म। हाँ, तो अब हीरो को उस टाइप पे दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes. नहीं हो रहा है। देखो वो हीरो जो है ना वो खड़ा होगा, वो सामने जाएगा, मारेगा, ये करेगा, राइट है? चाहे यहाँ से लहू निकला हो, वहां से लहू निकला हो, उसको दर्द ही नहीं होता उस टाइम पे। और वही सिचुएशंस आपके साथ भी होती है। इफ यू आर फाइटिंग विथ सम पर्सन, राइट, तो कोई आपको तमाचे लगा रहा है, ओके, कुछ भी आपको फाइट आपकी उनके साथ हो रही है, फिर भी उस टाइम पे आपको दर्द नहीं होता, आप उसको मारने में अपना पूरा कंसंट्रेट कर रहे होते हो, राइट? हम्म। Yes. सही ना? हाँ, तो ऐसा एक्सपीरियंस किस किस को है? सबको होगा, मुझे भी है। क्योंकि बचपन में कभी भी मैंने भी फाइट किया ही था। हम भी लड़ते हैं ना कब से किसी से, तो राइट ऋषभ? हम्म। हाँ, तो किसी ने तो झापट लगा दिया तो लगा के हम रोते नहीं है, हम उसको लगाने में, हाँ मैं भी तुम्हें मारूंगा, मैं भी, तो तब तुम्हें दर्द नहीं होता? दर्द होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके दो रीजन है। पहले, कि सुख नाम का जो गुण है ना, वो उसमें उतना विभाव नहीं चल रहा है, जितना विभाव चलेगा उतना ही दर्द होगा। दूसरी चीज, कि हमारा उपयोग एक समय पे एक ही जगह पे रह सकता है, यानी कि उपयोग यानी कि फोकस। हम्म। तो या तो अपने अंदर में या तो बाहर में, तो उस टाइम पे अपना फोकस कहाँ पे होगा? बाहर में। जब अपना फोकस बाहर होगा तो अपने अंदर क्या कुछ हो रहा है वो हमें पता नहीं चलेगा, इसीलिए उस मोमेंट पे हमें दर्द नहीं होता। तो ये मैंने आपको मास्टर की बता दी। तो ये मास्टर की क्या है पता है? दो मास्टर की मैंने बताई। फर्स्ट वन इज अ फोकस। जहां पे आपका फोकस होगा उसी को आप फील कर पाओगे। सही है कि नहीं है? Yes. यस, राइट। ओके। तो और दूसरी चीज मैंने बताई कि सुख नाम का गुण, तो चाहे बाहर, ओके आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। इफ यू आर इन अ, यू नो द मीन्स इन अ 90 डिग्री और 100 डिग्री में, फ़ारेनहाइट में अभी बात करें, इन सेल्सियस में आई विल टॉक अबाउट 32 डिग्री सेल्सियस, तो आपको गर्मी लगेगी कि आप परेशान होंगे? उस गर्मी में परेशान होंगे कि एंजॉय करोगे? बताओ निकिता, इफ यू आर इन अ 90 और 100 डिग्री और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में, व्हाट यू फील? आप परेशान होंगे, पसीना पसीना आ रहा है, देखो, ओके, यू आर ऑलरेडी स्वेटिंग इट आउट, तो आप परेशान होंगे कि आप एंजॉय करोगे? बताओ अर्णव। परेशान हो गए। परेशान होंगे। ओके, परेशान होने में कितने लोग सहमत है? वो अपने हाथ ऊंचा कर सकते हैं, राइट, एक दो। हम्म। और परेशान नहीं होंगे, एंजॉय करेंगे, उसमें कितने लोग सहमत है? हम्म, कोई नहीं। अगर मैं ये चीज बताऊं कि उस टाइम पे आप सोना बाथ ले रहे हो, सोना रूम में हो, ओके,
यू नो अबाउट राइट सोना। हाँ, अगर वहां पे टेम्परेचर कम होगा तो यू आर मेकिंग ए कंप्लेन, यहाँ पे तो टेम्परेचर कम है, you are already sweating it out over there and you are still enjoying it. Temperature is the same. Temperature same ही है ना। हम्म। अगर आप सोनाबाद में हो तो आप एंजॉय कर रहे हो, आप बाहर हो तो वही टेम्परेचर है तो आप परेशान हो रहे हो। टेम्परेचर में तो कुछ फर्क हमने किया ही नहीं। तो ये डिफरेंस कहाँ से आया? एक जगह पे वही टेम्परेचर में आपने एंजॉय किया, एक जगह पे वही टेम्परेचर में आप परेशान हुए, तो ये डिफरेंस कहाँ से आया? आ, क्योंकि बाहर आप वो एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि इतना टेम्परेचर होता है, पर सोना में आप एक्सपेक्ट करते हो कि इतना तो होना चाहिए, क्योंकि आप चाहते हो एक जगह और एक जगह नहीं चाहते। वेरी गुड। तो इसको हम सिंपल बोले कि ये आपकी बिलीफ में आया कि यहाँ पे मुझे परेशान नहीं है, यहाँ पे अगर इस एसी टेम्परेचर बाहर है तो मुझे परेशानी है। ये आपका बिलीफ में इश्यू है, हम बोल सकते हैं। हाँ। हाँ, सही है। हाँ, तो वही फर्स्ट चैप्टर में बताया गया कि दैट इज द प्रॉब्लम, इट इज इन योर बिलीफ सिस्टम। ओके, सिचुएशन इज द सेम, but you believe that situations is make you a suffering, but actually not, because situation is just a situation. Hmm? You are suffering because you believe that you have an issue in yourself, you have an issue in your belief system, right? I will give another example. Okay, जैसे किसी का हाथ कट जाए तो वो खुश होगा कि दुखी होगा? दुखी। हाँ, अगर मैं ये बोलूं कि ओके, उसको गैंग्रीन हुआ था, और डॉक्टर ने उसका हाथ काट दिया, अब वो खुश होगा कि दुखी होगा? गैंग्रीन क्या होता है पता है? आहिस्ता, इन्फेक्शन जैसे या होता है। आहिस्ता आहिस्ता दैट इन्फेक्शन इज ईटिंग इट आउट योर बॉडी, राइट? खुश तो होगा उसने, कि उसका इन्फेक्शन चले गया, पर दुखी भी होगा क्योंकि उसका हाथ भी चले गया। वो सबसे बोलेगा कि अच्छा हुआ मेरा सिर्फ हाथ गया और डॉक्टर ने सही टाइम पे हाथ काट लिया, एंड आई विल बी सेव्ड, राइट? उसका हाँ। हाथ कट गया है फिर भी वो खुश हो रहा है, वो डॉक्टर को थैंक यू बोल रहा है। हम्म, हाँ, सिचुएशंस वही है, हाथ कटना। डिफरेंस कहाँ पे आया? यू ऑल आर एग्रीड राइट कि सिचुएशंस तो सेम है कि उसका हाथ कटा। एक जगह पे वो दुखी होगा, एक जगह पे वो खुश होगा। तो ये डिफरेंस कहाँ पे आया? उसके मान्यता बिलीफ में। में, मान्यता में, बिलीफ में। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि फर्स्ट चैप्टर में क्या बताया है कि ये सारी चीजें सिचुएशंस है, लेकिन इन सिचुएशन से आप दुखी नहीं हो, आप दुखी हो अपनी मान्यता से, अपने बिलीफ से आप दुखी हो। ओके, तो आपको चेंज सिचुएशंस नहीं करनी है, क्योंकि आप पूरी दुनिया को बदल नहीं सकते। तो आपको चेंज क्या करना है? आपकी बिलीफ। अपनी बिलीफ को। यस। तो फर्स्ट में बताया कि हाँ तुम दुखी हो रहे हो बिकॉज ऑफ योर बिलीफ।
अब सेकंड में आके वो बोलेंगे कि भाई हाँ, अब तुम मेरे दो रीजन है, सिर्फ एक बिलीफ ही नहीं है, एक नॉलेज भी है, एक ज्ञान का भी रीजन है। ये चैप्टर 2 में आएगा, बिलीफ का और ज्ञान का, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों ही सिर्फ कोज है। अगर तुमने इन दोनों कोज को चेंज कर लिया, तो थर्ड चैप्टर आ जाएगा। ओके, कि तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा। लेकिन पहले में सिर्फ यही एक दोष दिखाया है कि यहाँ पे तो मेरे ज्ञान का है, नहीं तुम्हारे बिलीफ का है। दूसरे में आके बताया है कि ज्ञान का और बिलीफ का। ओके, तो हम अब फर्स्ट चैप्टर को पढ़ते हैं। अब सिचुएशंस वही होगी, आप मुझे बताना कि उसमें मेरी बिलीफ सिस्टम कैसे काम करती है। और उससे पहले हम लोग चाहेंगे, ये तो हमने कर लिया। अ, हम्म, तो अब स्पीड से पढ़ते हैं, ठीक है। और जहाँ कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आएगा, ऑन दैट टाइम आस्क मी एंड विल गो थ्रू इट। सो, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणातार। यहाँ पे उसने बता दिया कि इसमें अब इस ढाल में वो क्या करेंगे और क्या करना चाहते हैं। तो बताया कि इन तीनों भुवन में, तीनों लोक में अनंतो जीव है, और वो सभी कुछ एक ही चीज चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सुख। और किन से डरते हैं? दुखी होने से डरते हैं, राइट। तो उसके दुख को ताते, यानी कि उसके दुख हारी, यानी कि दुख को हरने वाली, दुख को दूर करने वाली, और सुख को लाने वाली, सुखकार, यानी कि सुख रूपी आकार, सुख को लाने वाली ऐसी सीख, यानी कि ऐसी लेसन कौन करे, कौन हमको बता रहा है? हमको गुरु बता रहे हैं। हम पे करुणा करके, यानी कि अपने हम पे वो करुणा कर रहे हैं, करुणा धार के हमें ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि पहली ढाल के अंदर किसका वर्णन आएगा? दुख का आएगा, और उसको कैसे दूर करेंगे वो आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आज चलते हैं। हम्म, तो अब जब वो बता रहे हैं तो हमारी ड्यूटी क्या है? व्हाट इज अवर ड्यूटी, राइट? दो पार्टी होगी यहाँ पे, फर्स्ट पार्टी गुरु है और सेकंड पार्टी हम है। या तो बोले हम फर्स्ट पार्टी है और सेकंड पार्टी गुरु है। ओके, तो अगर वो कोई हमें बता रहे हम पे इतनी करुणा करके, तो मेरी तो कुछ ड्यूटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ड्यूटी बताई, ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। यहीं पे उसने 6 ढाला पूरी की पूरी खत्म कर दी। ओके, अब बाकी जितना आएगा वो सिर्फ उसका विस्तार आएगा, यानी कि जो लोग यहाँ पे नहीं समझे उनके लिए अब हम समझा रहे हैं, ये आएगा। पर इसी पे उसने 6 ढाला पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी। तो क्या बताया? ता ही सुनो भवि मन थी रान, यानी कि ता ही, यानी कि उसको, जो बता रहे हैं ना, उसको सुनो। कैसे? है भव्य, यानी कि भवि, यानी कि हम है भव्य, उसको जो बता रहे हैं ना, ऐसी सीख को, ऐसे लेसन को सुनो। और कैसे सुनो? अपने मन को स्थिर करके। जब बता रहे हैं तब अपने मन में और कोई दूसरा विचार मत करो, इसको इधर उधर मत घुमाओ। उसको अभी मैं आगे झुकू पीछे झुकू यूं करूं, नहीं, पूरी की पूरी स्थिरता, राइट, टोटली फुल्ली फोकस्ड होके। और क्यों ऐसा तुम्हें सुनना है? क्योंकि ऐसा इसलिए तुम सुनो कि अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो, अगर अब भी तुम दुखी रहना चाहते हो तो अब आगे की बात तुम्हारे लिए नहीं है।
लेकिन अगर तुम सुखी होना चाहते हो, हाँ, तो अब जो कुछ भी बताया जा रहा है उसको सुनो, अपना कल्याण चाहते हो तो। और सुनने के बाद तुम्हें प्रैक्टिकल करना है, तो प्रैक्टिकल क्या करना है ये यहाँ पर बताया उसने। मोह महामद पियो अनादि, कि जो तुम अनादि काल से मोह रूपी मद यानी कि दारू को पी रहे हो ना, उसको छोड़ दो। तो मोह यानी कि क्या? जो नहीं है ना उसको हम है ऐसा मानते, उसको मोह बोलते हैं। क्या? जो नहीं है उसको होना मानना। ठीक है। हाँ, तो अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो मुझे बताओ, आई कैन मेक इट इजी। जैसे, ओके, जो एक पेंसिल है आपके पास, पेंसिल वो आपकी है ही नहीं, लेकिन आप उसको किसका मानते हो? अपना मानते हो। किसके वश? मोह के वश। पेंसिल किसकी है बताओ? आपके पास पड़ी हुई पेंसिल किसकी है? किसी के भी नहीं है पेंसिल, बस पेंसिल है। पेंसिल पेंसिल की है, आपकी तो नहीं है, हाँ, राइट? हाँ। क्यों नहीं है आपकी? क्योंकि पेंसिल कौन है? उद्गल है। आप कौन हो? आप कौन हो? जी। जीव हो। हाँ, तो जीव का अपना सिर्फ जीव ही हो सकता है, जीव का अपना पुद्गल नहीं हो सकता। और फिर भी जो आपकी नहीं है, उनकी आप अपने उनकी उसी को अपने आप की मान रहे हो कि ये मेरी है। मोह। जो नहीं है उनको है मानना, उनको उल्टा मानना, मोह। राइट, उसी को तो मोह बोलते हैं। और किसको बोलेंगे? हम्म? तो जो जो कुछ भी आपका नहीं है उसको आप मोह रूपी दारू पी के उसको अपना मान रहे हो, तो उनको सबसे पहले छोड़ो। हम्म। और तो सबसे पहले वही कि भूल उसने बताई, और फिर दूसरा कहा कि पहले ये तो करो, और दूसरा क्या करो? तो दूसरा ये करो, भूल आपको भरमतवादी, यानी कि अपने आप को भूल कर तुम भटक रहे हो, तो उसका उल्टा कर दो, अपने आप को जान के भटकना बंद करो। हम्म? ये नेगेटिव वे पे बोला गया है कि अपने आप को भूल के तुम भटक रहे हो, तो पॉजिटिव वे पे क्या बोला जाएगा कि अपने आप को जान के भटकना बंद करो, स्थिर हो जाओ। राइट। तो दो चीजें बताई यहाँ पे। पहली चीज बताई कि तुम जो अपना नहीं है उसको अपना मान रहे हो, तो यहाँ पे अपना मानना छोड़ो, और यहाँ पे अपने आप को जानो। हम्म? तो मानो और जानो, तो जीव सिर्फ दो ही काम कर सकता है, जानता है, मानता है। उसी को बोलते हैं जानना देखना। देखना और क्या हुआ? मानना ही तो हुआ। राइट। हम्म। हम्म। तो अगर यहीं पे जो वेरी इंटेलिजेंट पर्सन है उसने समझ लिया, तो यहाँ पे उसने अपना कल्याण कर लिया, तो अब उनको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मगर हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है। तो अब कहानी अपनी शुरू होती है आगे की, पर 6 डाला यहाँ पे खत्म। ओके, एक्चुअली पूरी की पूरी, पर अपने लिए शुरू हो रही है। हम्म। तो देखो ये दूसरा ही स्टेंजा है और उसने सब कुछ बता दिया, अब जाके उसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन होगा। हम आगे जाएंगे। ओके। हाँ, तो अब अपनी कहानी शुरू होती है।
दास भ्रमण की है बहु कथा, पे कहूँ कही मूल जथा। काल अनंत निगोद मंजार, बीत्यो एकेंद्रिय तन धार। अब तुम्हारे भटकने की, भूलने की जो कथा है ना, जो स्टोरी है, वो बहुत लंबी है। तो उतनी लंबी तो अब सुनाने का टाइम नहीं है, राइट। तो अब उसमें से कुछ चीज हम कहेंगे, और हम कैसा कहेंगे, जैसे पे उस यानी कि उसमें से, कहूँ यानी कि मैं कहूंगा, ओके। कुछ कहीं यानी कि कुछ ही, उसमें से मैं कुछ ही आपको बताऊंगा। और कैसा बताऊंगा, जैसा मुझे मुनिराजों ने बताया है। जथा यानी कि जैसा, जो मुझे मुनिराजों ने बताया है वैसा ही मैं आपको बहुत ही थोड़ा बताऊंगा। ऐसा यहाँ पे जो ऑथर है वो बोल रहे हैं कि अब आपके जो भटक रहे थे ना, उसकी कहानी अब यहाँ से शुरू हो रही है। अब उसने बताया, काल अनंत निगोद मंजार। आपका अनंतो काल कहाँ पे चला गया, निगोद में चला गया। और उसमें से कहीं पे भी आप छोटे मोटे भी आए ना, तो आके बाकी में कहाँ चला गया, बीत्यो एक इंद्रिय तनधार। तो एक इंद्रिय रूपी बॉडी को धारण करके चला गया। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ, आपको दो चीजें बतानी है, मान्यता में और ज्ञान में। यहाँ पे मान्यता में क्या आपकी भूल थी। हमें पढ़ना है, उसने जो बताया है हमें पढ़ना है। पढ़ना यानी कि समझना। तो यहाँ पे मान्यता में क्या भूल थी, मुझे कौन बताएगा। Can you repeat the question? My ओके, computer's battery died. नो प्रॉब्लम। सो द क्वेश्चन इज, what, okay, so I will again repeat this one up so at least you can listen it properly. And question is, where do we have that means what we can say, issue or a wrong belief. Okay, we have an issue in a belief, right? तो हमेरा बिलीफ में इसमें कहाँ पे इश्यू है, आप हमें बताना। काल अनंत निगोद मंजार, यानी कि अनंत काल निगोद में चला गया। बीत्यो एकेंद्रिय तनधार, यानी कि एकेंद्रिय जो बॉडी होती है, वन सेंस, उसकी बॉडी में अनंतो, उसके बाद भी अनंतो काल हमने गंवा दिया। तो वेयर डू वी हैड अ बिलीफ इश्यू, वेयर वी हैव अ बिलीफ में कौन सा इश्यू कहाँ पे है, कैसा है। हम्म, बताओ। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बताओ बताओ। हाँ, मुझे लगता है कि हमने अपने आप को शरीर में ही माना। वही हाँ हमारी मान्यता गलत है। हाँ, मैंने अपने आप को एकेंद्रिय माना, राइट। जैसे अभी भी मैं अपने आप को वही की वही, तो गलत मान्यता है। अभी मैं अपने आप को क्या मान रहा हूँ, मनुष्य मान शरीर रहा मान हूँ। मनुष्य शरीर तो मान शरीर रहा हूँ, और क्या मान रहा उद्ग हूँ, अपने राइट। नाम से। हाँ, वही तो अपनी भूल थी। और इसीलिए इसी भूल के कारण मैंने अनंतो काल निगोद में, फिर मैं एकेंद्रीय हुआ। तो जैसे जो मुझे बॉडी मिला ना, मैंने उसको अपना माना कि ये मैं हूँ। और उस बॉडी में कुछ भी हुआ, इसीलिए मैं दुखी हुआ। जैसे वही पेंसिल आपने अपनी मानी, और किसी बच्चे ने आके वही पेंसिल को तोड़ दिया, अब आपको दुख होगा कि नहीं होगा, राइट। वो पेंसिल को आपने अपना माना था, इसलिए किसी ने उसको तोड़ दिया तो आपको दुख होगा। और वही की वही पेंसिल स्टोर में पड़ी है, और वहां पे किसी बच्चे ने उठाई और तोड़ दी, आपको दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि उस पेंसिल को आपने अपना नहीं माना, राइट। हाँ, तो जिसको आप अपना मानते हो तो उसी के हिसाब से आप दुखी होते हो। तो आपने अपनी मान्यता को गलत जगह पे लगाया है कि बॉडी को अपने माना, अपना वन सेंस को अपना माना कि यही मैं हूँ, और इसीलिए उसके सारे के सारे दुख आपने भोगे। ओके, चलिए दूसरी ढाल पे चलते हैं। और कैसे दुख थे, अब देखना। अब यहाँ पे अपनी मान्यता, हर एक में अपनी सिर्फ मान्यता पे ही, आपको बिलीफ में ही आपको मुझे आंसर देना है। ओके, ये पहले किस हिसाब से इसका तो हम पढ़ चुके हैं, दिस इज रिपीटेशंस। तो एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। मैं इसका मीनिंग कर देता हूँ। एक श्वास में 8-10 यानी कि 10 + 8, 18 बार, 18 टाइम जन्म्यो मरियो, और उसी के बीच में अनंत दुख भरियो, यानी कि मैंने भरा, सहन किया, लिया। भरियो दुख भार, दुख रूपी भार को मैंने सहन किया। वाह, ओके। और वहां से निकसी यानी कि वहां से निकल के मैं भूमि, यानी कि ये 5 स्थावर यहाँ पे आए, तो यहाँ पे स्थावर का वर्णन किया गया। तो 5 स्थावर आपको पता ही है, राइट। किसको सारे के सारे 5 स्थावर के नाम आते हैं? ऋषभ। Ah, I don't know the names. ओके, अर्णव। जल कायक, पृथ्वी कायक, वनस्पति कायक, वायु कायक एंड एंड अग्नि का है, राइट। हम्म तो अग्नि का है। ओके, सो जल ही जिनकी काया है, जिनकी बॉडी ही जल है, उनको बोलते हैं जल काय। ओके, अर्थ ही जिनकी बॉडी है, उनको बोलते हैं पृथ्वी काय। ओके, वायु ही उनकी जिनकी बॉडी है, उनको बोलते हैं वायु काय, राइट। अग्नि ही जिनकी बॉडी है, उनको बोलते हैं अग्नि काय। और वनस्पति ही जिनकी बॉडी है, उनको बोलते हैं वनस्पति काय। ऑल दीज आर द वन सेंस, ये राइट। 5 एलिमेंट्स भी हैं एक्चुअल में, 5 नहीं, एलिमेंट्स में नहीं। फिफ्थ एलिमेंट में वनस्पति कहाँ? पृथ्वी जल अग्नि, पृथ्वी जल अग्नि वायु, वायु और और हम पृथ्वी जल अग्नि वायु और वायु 4, और पांचवा वो फिफ्थ एलिमेंट में। और हाँ, और वो फिफ्थ, वो वनस्पति। पांचवा नहीं, अपने आप को मानते हैं जीव। ओके। ओके, वो अपने आप को, वो जीव अपने आप को मानते हैं कि हम ये पांचों मिलके मेरा शरीर बना है, ये सब कुछ बना अच्छा। है। हम्म। पर यहाँ पे हम लोग वनस्पति, और उसी में भी वनस्पति में यहाँ पे उसने बताया 2 प्रकार की वनस्पति होती है, एक प्रत्यष्ट और एक अप्रत्यष्ट। यानी कि एक प्रत्येक, यानी कि उसी में क्या होगा कि एक ही बॉडी में एक जीव होगा, और एक अनंत काय, एक बॉडी में अनंतो जीव होंगे। जैसे बटाटा सुरण, यानी कि जितने भी कंदमूल है, 5 उदंबर फल है, ये सभी कुछ वो उसी में जाएंगे। और जैसे लौकी है, भिंडी है, ओके, फिर टमाटर है, फिर हम बोलेंगे, या ककम्बर है, मैंगो है, वो सारी प्रत्येक है, एक के अंदर सिर्फ एक ही जीव है। ओके, तो ऑफ पार्ट कि अगर देखो, जैसे हमारे में बोला गया है, इन सब के लिए अशक्य अनुष्ठान, यानी कि हमें कुछ, देखो हम टोटली अहिंसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन सबको मारना क्या पाप है? हाँ, डेफिनेटली है। लेकिन हम श्वास तो हमें लेना ही पड़ेगा, राइट। तो उसमें भी जीव मरेंगे, ठीक है। पानी तो हमें पीना ही पड़ेगा,
ओके, तो उसमें भी जीव मरेंगे। हमें खाना खाना ही पड़ेगा, तो उसमें भी जीव मरेंगे। ओके, तो इन सब में भी जीव मरते हैं, तो उसकी हिंसा का पाप हमें लगता है। लेकिन ठीक है, लेकिन क्योंकि इन सब के बिना तो हम नहीं रह सकते, तो उनको अशक्य अनुष्ठान कहा कि इनको आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन तो आप छोड़ क्या सकते हो? तो आप जैसे आप उसमें से जो चीज छोड़ सकते हो ना, वो ये है कि उसमें कम से कम हिंसा हो। ठीक है, उसमें कम से कम हिंसा हो। इसलिए हम मैंगो को खाते हैं, आलू को नहीं खाते। क्यों? क्योंकि मैंगो में सिर्फ एक ही जीव मर रहा है और आलू में अनंत मर रहे हैं। हम इसलिए प्याज को नहीं खाते, ककड़ी खाते। ककड़ी में कितना जीव मरेंगे? एक। और प्याज में, ओनियन में, गार्लिक में अनंत। राइट? तो यहाँ पे एक के सामने इनफाइनाइट क्वांटिटी है। हम चूज कर रहे हैं कि भी हाँ, कि देखो हम मिनिमाइज कर रहे हैं कि हम इसके बगैर तो नहीं रह सकते, लेकिन अपने विवेक से हम उसको मिनिमाइज कर रहे हैं। अब वायु काय में हम क्या करेंगे? ये तो खाने की बात हो गई। अब वायु काय में हम कैसे मिनिमाइज करेंगे? बताओ, कौन मुझे एग्जांपल देगा? Can you खाने repeat का the मैंने, question? ओके, देखो यहाँ पे ये पांचों काय वनस्पति, ये सब कुछ, ये पांचों स्थावर बताया, राइट। लेकिन यहाँ पे एक ऑफ बीट हम बात कर रहे हैं कि एक चीज ऐसी होती है कि इन सबको मारना क्या पाप है? क्वेश्चन ये आएगा, हाँ है, राइट। उसमें तो हम मना नहीं कर रहे, क्योंकि किसी भी जीव को मारना पाप है। सही है? ओके, Yes. दैट पॉइंट यू अंडरस्टैंड इट, करेक्ट। तो Yes. हम खाने के बगैर नहीं रह सकते, हमें सांस तो लेनी ही पड़ेगी। तो सांस में हम क्या लेते हैं? वायु, एयर, Hmm. राइट। तो उसके बगैर तो Yeah. हम नहीं रह सकते। पानी तो हमें जीने के लिए पीना ही चाहिए। अगर हमने पानी छोड़ दिया तो मर जाएंगे, करेक्ट। तो पानी में भी जीव है, वायु में भी जीव है। हमें खाने के लिए अग्नि तो जलानी ही पड़ेगी, उसके बगैर तो खाना बनेगा नहीं। तो अग्नि में भी जीव है, करेक्ट, राइट। तो हम जीव हिंसा के पाप से कैसे बचे? दैट इज माय क्वेश्चन, राइट। So now you understand that question? Or no? Now you understand the question? Yes. Okay. So I'm just explaining how we can save it. Because मैंने क्या बताया, प्रत्येक वनस्पति, हम प्रत्येक वनस्पति को तो खा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक में, एक वनस्पति में एक ही जीव है। जैसे एक ककम्बर में कितने जीव होंगे? एक, राइट। लेकिन एक आलू में कितने होंगे? एक पोटैटो में कितने जीव होंगे? Anant. अनंत, इनफाइनाइट जीव होंगे एक पोटैटो में। तो तुम पोटैटो खाओगे तो तुम्हें कितना पाप लगेगा? ओके। और तुम ककड़ी खाओगे तो कितना पाप लगेगा? तुम्हें पाप लगा जीव को मारने का, तो तुमने अनंत जीवों को मार दिया, तो तुम्हें कितना पाप लगेगा? राइट। और यहाँ पे तुमने सिर्फ एक ही जीव को मारा है, तो तुम्हें कितना पाप लगेगा? कंपेयर टू अनंत जीवों को मारने में, यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन करो तो किसमें कम पाप लगेगा? अर्णव, The cucumber. The cucumber. कुकुम्बर में कम पाप लगेगा, राइट। हाँ, तो Mm-hmm. हम क्या करेंगे? हम ज्यादा से ज्यादा पाप बांधेंगे कि हम कम से कम पाप बांधेंगे? The least amount, the least possible amount.
लीस्ट ऑफ द अमाउंट, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ककड़ी वगैरह जिसमें एक ही जीव हो ऐसे सारी चीजें हम खाएंगे, राइट। ओके, अब खाने में तो हमने डिसाइड कर लिया, पर अब नाउ वायु, तुम सांस तो लोगे ही, अब हाउ यू कैन सेव इट फ्रॉम देयर, तुम उसमें कैसे बचाओगे। तो सेम लॉजिक उसमें भी, जैसे हम परफ्यूम्स वगैरह यूज करते हैं, तो परफ्यूम्स को बनाने में अनंतों जीवों की हिंसा होती है। ओके, तुम्हारे लिए एयर चाहिए, दैट इज नेसेसरी, बट स्मेल वाली एयर चाहिए, अच्छी स्मेल वाली, दैट इज नॉट नेसेसरी, दैट इज लग्जरी। करेक्ट। हम्म, सही है ना। ओके, अब चॉइस आपकी है कि तुम पूरा वो स्मेल करके वो ये सब कुछ करके लोगे, तो उसमें ज्यादा पाप लगेगा। तुम सिर्फ सांस ले रहे हो तो उसमें कम पाप लगेगा। पानी में, अब पानी में कैसे, हाउ यू कैन सेव इट थ्रू द वाटर, कौन बताएगा। हाँ बताओ पूर्वी जी। Like while taking bath, shower versus bucket. शावर Shower वर्सेस leads to बकेट, a वेरी lot of गुड। wastage of water. Similarly, when washing vessels, minimizing the waste of water and using it just for your purpose, like a minimalistic approach. वेरी गुड। ओके, सो दैट इज रियली वी नीड टू डू, यू नो दैट मीन्स, इसीलिए हमारे जो मुनि महाराज होते हैं ना, वो कभी भी स्नान नहीं करते, वो कभी भी बाथ नहीं लेते, लेकिन वो मुनि महाराज के लिए है। गृहस्थ के लिए रोज स्नान करना चाहिए, क्योंकि हमें बिना स्नान के हम मंदिर नहीं जा सकते। हम्म, हाँ, तो हमें मिनिमल उसमें यूज। ओके, ये वन। अब अबाउट द ड्रिंकिंग वाटर, क्या करोगे आप, पता है, इन अ ड्रॉप ऑफ द वाटर एवरी मोमेंट देर आर असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं, मर जाते हैं, ऊपर लिखा ही है। सो हाउ यू कैन ब्रेक दैट साइकिल। पानी, आपने एक गिलास में पीने के लिए पानी भरा, तो उसमें एक आपकी हार्ट बीट चली गई ना, तब तक तो 18 बार कई सारे जीव उसमें उसमें जन्म मर गए, जन्मे मर गए। आपने पीने के लिए पानी का ग्लास भरा है, जब तक आप नहीं पी लेते, और जितना भी टाइम गया ना, उतने टाइम के लिए उसमें जितने भी जीव उत्पन्न हो रहे हैं मर रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं मर रहे हैं, उनका पाप आपको लग रहा है। ओके, तो उसको आप कैसे रोकोगे। यस निकिता। Filter the water. फिल्टर द वाटर, ओके, यस, फिल्टर तो हमें करना ही चाहिए, यस, वेरी गुड। एंड व्हाट एल्स। अ, अ, पानी को छानकर उसको गुनगुना गरम कर लेते हैं, जिससे उसका वो बढ़ जाती है, क्या बोलते हैं, हाँ, मर्यादा उसकी बढ़ अवधि बढ़ जाती है, जाती, तो मर्यादा हम बढ़ वही जाती। करके रखती हूँ मैं एक्चुअल में, हाँ, गरम कर वेरी लेते हैं, गुड। तो जलकायिक जो जीव होते हैं वो भी मतलब अपने मुंह में नहीं जाते, नस तो होते हैं वो, हाँ, पर अपने हाँ, अंदर मर नहीं जाते। जाते। हम्म, हाँ, तो हमें उसमें कम से कम पाप लगता है, क्यों लगता है पता है, क्योंकि जब हम बॉईल कर रहे हैं ना, तो पानी में जितने जीव है ना उतने मर जाएंगे, तो उतने का ही हमें पाप लगेगा। ओके, लेकिन वो उसकी अवधि होती है, जैसे उसकी अवधि यानी कि उसकी लिमिट होती है, एंड यू नीड टू रीड इट, ओके दैट, जैसे अगर समर है तो वो जो लिमिट है ना वो थोड़ी सी कम है, विंटर है तो वो लिमिट ज्यादा है। ओके, हम उसको बोलते हैं कि भाई हाँ आपने कितना उबाला है पानी, उसके हिसाब से उसकी अवधि कि भाई ये 2 घड़ी, 3 घड़ी, 6 घड़ी, 6 घड़ी तक रहता है, यानी कि इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इट इन विंटर टाइम और इन समर टाइम, इफ यू हैव जस्ट आपने गुनगुना किया हुआ है ना पानी, तो मैक्सिमम इट विल बी इट्स लिमिटेशंस इज अप टू 2 आवर्स और 3 आवर्स, राइट। अगर आपने काफी उकाला है तो उसकी 3 घंटे हो जाएगी, 6 घंटे हो जाएगी, अगर बारिश है तो बारिश में हाँ 2 घंटे, 3 घंटे ही, उसके बाद आपको वापस से उसमें जीव उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएंगे।
तो उस हिसाब से जैसे अपनी सीजन के अनुसार अपनी लिमिट देखो, और पानी बॉइल्ड करके उसको नॉर्मल टेम्परेचर कर दो, फिल्टर करो और पियो। अब उसमें कोई भी जीव नहीं है, तो आपको अब उतने जीवों का पाप नहीं लगेगा। तो अपनी जितनी भी रहने करने की स्टाइल है ना, वो पूरी की पूरी बेस्ड ऑन अहिंसा पे है। आप अग्नि में कैसा लिमिट कर पाओगे? खाना बनाने के लिए तो अग्नि चाहिए ही, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अग्नि चाहिए। हाउ यू कैन लिमिट इट आउट, अग्नि का एक जीव को? बताओ। आपको जितना जरूरी है उतना ही खाना बनाओ, ठीक है? थोड़ा सा ज्यादा बनाओ पर इतना ज्यादा नहीं। और जितना खाना बना हुआ है उतना आप यूज कर लो। वी आर नॉट कीपिंग इन अ फ्रीज आवर फूड्स, हम अपने फूड को फ्रीज में नहीं रखते। हम लोग बासी नहीं खाते। सुबह का खाना सुबह, शाम का खाना शाम को, दोनों टाइम पे बना के ही खाते हैं। उसके पीछे ये अहिंसा है कि अग्नि का एक जीवों की उसमें हिंसा ना हो, ठीक है? तो हमने सब कुछ, और पृथ्वी का ही, हाउ यू कैन सेव इट, उसको आप कैसे बचाओगे? जहां तहां पे कचरा मत फेंको, ओके? रिसाइकल्ड का रिसाइकल में ही डालो। ट्राई टू यूज ऑल दोज स्टफ कि जिनसे पानी, पृथ्वी, जल, ये सब कुछ एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट ना हो। पेपर आपने यूज किया, टिश्यू पेपर थ्रो कर दिया। पेपर इज मेड फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द वुड, वनस्पति से बनता है, राइट? तो पेपर की जगह पे क्या यूज करेंगे? पेपर की जगह पे नैपकिन यूज करो, उसको वापस वॉश कर सकते हो। हम्म? तो इफ यू आर डूइंग ऑल दोस्त स्टफ, तो आपको क्या होगा? कम से कम पाप लगेगा, और कम से कम पाप लगेगा तो सहन भी कम से कम करोगे। और एक चीज बता दूं आपको, कि जो पंचम आ रहा है ना, वी आर इन 5वें आरे में है हम टाइम साइकिल के। एंड नाउ इन दिस क्लास एवरीवन इज नोइंग। तो यहाँ से सबसे ज्यादा मर के नरक में जाएंगे। मैक्सिमम जो आप अपने आसपास देख रहे हो ना, उन सबकी उसमें से मैक्सिमम लोग कहाँ पे जाएंगे? मर के नरक में जाएंगे, ओके? उसके बाद मैक्सिमम नरक में, उसके बाद जो कुछ बचे हुए हैं ना, वो जाएंगे तिर्यंच में, यानी कि वो एनिमल्स बनेंगे, ओके? एंड कुछ ही एक्सेप्शंस वाले, या तो मनुष्य और या तो देव, बट दोज आर द एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस को आप समझ रहे हो, राइट? कि दोज आर नॉट रेगुलर वन। So now you will just see our lifestyle and see it what we are doing. मैंने तुरंत ही, कुछ पानी गिरा था, टिश्यू पेपर का रोल था, मैंने तुरंत ही उसमें से फाड़ा, पोंछा, पेपर को थ्रो कर दिया। So this is my lifestyle, and if I don't want to go वो दोनों जगह में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? I need to change my lifestyle, right? देखो अपनी लाइफस्टाइल। मुझे सिर्फ 10 जोड़ी कपड़ा चाहिए, हाँ, तो मैं 15, 20, 25, 50 कर रहा हूँ। क्या है? हिंसा। हम्म, सही है, राइट? तो उसी हिंसा को रोका तो हमने उसको क्या बताया? अपरिग्रह बताया। अल्टीमेटली इफ यू आर गोइंग, वो अहिंसा पे ही जाएगा। थिंक अबाउट इट, राइट? अपरिग्रह यानी कि मुझे जितना चाहिए उतना मैं रखूंगा, उससे ज्यादा नहीं रखूंगा। उसका मतलब क्या हुआ? अल्टीमेटली अहिंसा।
Ultimately, that is our lifestyle. All right. तो हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो चुके थे, but it is means we are we are a deciding factor where we want to go. Okay, and if we decided that, hey, I don't want to go on to that side one, then all our actions support always been supported to our goal. तो हमारे सारे एक्शंस जो है ना, वो अपने गोल को सपोर्ट करने चाहिए. हम एक्शंस कुछ और कर रहे हैं और अपना गोल कुछ और है, तो आर वी एबल टू अचीव अवर गोल? यस और नो? ऋषभ, अगर हमारा गोल ओके पढ़ाई करना है और अच्छे नंबर लेना है, और हम खेलने में, ओके, स्पोर्ट्स में, मूवीज में और इन सब में टाइम ही पास कर रहे हैं, तो आई एम गेटिंग ए गुड नंबर्स इन एजुकेशन? No. नो. तो Problem. ये बता रहा है कि हमारा एक्शंस जो है ना, वो अपने गोल को सपोर्ट नहीं कर रहा है. राइट? सो व्हाट वी नीड टू डू? We need to change a course of actions, and we need to do all those actions that is supporting to our goal. Okay, तो मैंने ये बता दिया कि यहाँ से हम में से ही कई लोग अपने आसपास देखेंगे, उसमें से ज्यादातर लोग कहाँ पे जाएंगे? नरक में जाएंगे. तो उसका उपदेश भी कैसा होगा, उसकी बातचीत भी कैसी होगी? अरे ऋषभ, थोड़ा सा दारू पी ले, क्या होगा, एक बार एंजॉय कर लो. ओके, नाउ यू आर ग्रोन अप. You already attend a legal age to drink. Occasionally पियो. उसका उपदेश भी ऐसा ही होगा, क्योंकि उनको तो खुद कहाँ पे जाना है? नरक में. और तुम्हें भी कहाँ पे लेके जाना है? नरक में. ओके, तो तुम्हारा एक्शंस क्या होना चाहिए? सॉरी, आई एम ए जैन. आई एम नॉट ड्रिंकिंग लिकर. राइट? हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ही चेंजेस करेंगे. हम अपने कंफर्ट में चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अननेसेसरी थिंग्स को हम लोग अवॉइड कर रहे हैं. राइट? मुझे अगर 25 ड्रेसेस चाहिए तो 25 चाहिए, ठीक है, मैंने 25 रख लिए, पर उसके बाद 26 वाला नहीं. दैट इज अननेसेसरी. जितना मुझे नेसेसरीली चाहिए उतना हम कर रहे हैं. ठीक है ना? राइट? मुझे कोई चीज पसंद आई खाने में, तो मैंने दोपहर को मुझे खाना था, तो मैंने दोपहर के लिए बनाया, और मैंने इतना ज्यादा बना दिया कि अब 2 दिन तक वही का वही फ्रीज में पड़ा रहेगा. तो उसमें भी कुछ टाइम के बाद जीव उत्पत्ति होना शुरू हो जाएगी, तो उसको हमें पाप लगेगा. तो मैंने क्या किया? मुझे पसंद है, चलो मुझे मान लो कि पनीर कोफ्ता पसंद है, तो मैं उतना ही बनाऊंगा कि जितना मैं एक टाइम पे खा सकूं. जीव हिंसा से बच गया. फिर दूसरे दिन वापस मुझे वही का वही मन हुआ, तो मैं वापस बनाऊंगा. बना के रखने में, उसके बाद थ्रो कर देने में काफी हिंसा है. करेक्ट? सो यू विल डिसाइड कि हम इसमें देखेंगे कि हमें कहाँ पे जाना है. यू विल डिसाइड कि तुम्हें कहाँ पे जाना है, और तुम्हारा कोर्स ऑफ द एक्शंस, यानी कि तुम्हारे हर सारे एक्शंस उसी को सपोर्टिव होंगे, तभी तुम वहां पे पहुंच पाओगे. अगर तुम कोई और एक्शंस कर रहे हो, और चीजें कर रहे हो, और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे पहुंचू, कभी नहीं पहुंचोगे. सिंपल एज इट इज. ओके, और आज हम 4 तक पहुंचे. Shit. पर चलिए, ये इसमें अब वापस वी आर गोइंग बैक टू दिस द सेम सब्जेक्ट. मैं वापस पढ़ता हूँ. इसमें अपनी बिलीफ की भूल कहाँ पे है? एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख पार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो.
हाँ जी, बताइए। हाँ, ये एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार, मतलब एक जीव, हम जो जीव है वो मरना और जन्म लेना, मतलब हाँ हाँ, वही तो हम दुख का हाँ, मानते हैं। वही दुख मानते हाँ, हैं, बट हम वो किस एक्चुअल में जीव मरता ही नहीं है, जीव तो जीव है। और वो हाँ, अगर जीव मरेगा तो उसको जीव कैसे ही बोलेंगे? नाम ही खुद बता रहा है कि ये जीवित है, हम बोल रहे हैं ना कि ये जीवित है, इसका मतलब क्या है? जीव ही बता रहा है कि मैं जीव हूँ, मैं मरता नहीं। नहीं और ये दुख हूँ। और सुख, ये सब वही आपने जो कहा कि और अपना अपनी हमने बिलीफ। इसमें, हाँ, डर किसका हमें लग रहा है कि मैं मर ना जाऊं। ठीक है। हाँ, मैं जन्मूं तो जन्म में भी मेरा जन्म होगा, इतना दुख होगा, मेरा मरण होगा, इतना दुख होगा। हम मरण में अपना दुख मानते हैं, जन्म में अपना दुख मानते हैं। अगर मैं नरक में जन्मा, नारकी एज ए जन्मा, तो मैं दुखी होऊंगा। अगर मैं शेर में गया, मैं एनिमल्स हुआ, मैं वहीं पे जन्मा, मैं अपने आप को दुखी मानूंगा। हम्म। अगर मैं वनस्पति बना, मैं अपने आप को दुखी मानूंगा। ये सब कुछ बताया। वहां पे मैं जन्मा, अपने आप को दुखी मानूंगा। जन्म और मरण, हम उसको दुख मानते हैं। लेकिन जीव ना तो जन्मता है और ना ही मरता है। ठीक है। हम्म। हाँ, तो अब हर एक में हम जाएंगे, टिक मार्क करते जाएंगे। पे ओ, यहाँ पे ये बिलीफ सिस्टम, यहाँ पे उसने इसका मेरा चोट किया है, यहाँ पे इसका चोट किया है। ठीक है ना? तो आज थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो चुके थे, और इसलिए हम 4 तक गए। मगर कल नेक्स्ट पीरियड में उसके बाद का आई विल, बिकॉज इट विल बी इजियर, और सभी में हर एक गति का आएगा। तो यू आर नाउ रीड लाइक दैट वन अप, एंड ट्राई टू सी वेयर यू हैव अ बिलीफ सिस्टम। कहाँ कहाँ पे बताया गया कि तुम क्या क्या बिलीव करते हो, जिनसे तुम मानते हो कि इससे मैं सुखी होऊंगा, इनसे मैं दुखी होऊंगा। ठीक। वो तुम नोट कर लो। और नेक्स्ट, दिस वन इज अ होमवर्क फॉर अ वीक। बाकी की सारी जो ढाल है ना, ढाल फर्स्ट, उसमें हर एक स्टेंजा में जाओ। यू ऑलरेडी नो इट, राइट? एवरीवन हैज दिस द पीपीटी। ओके, और ये पीपीटी कहाँ पे आपको मिलेगी? गूगल क्लासरूम में। और नहीं भी है तो 6 ढाला आपके पास होगी। 6 ढाला में ये सारे स्टेंजा है। आपको सिर्फ हर एक स्टेंजा में लिखना है कि भाई, सिर्फ इतना ही लिखना है कि स्टेंजा 4, यहाँ पे मैं दुख मानता था, और यहाँ पे अगर ये मैं सच्चा सुख इसमें है, मेरी मान्यता यहाँ पे। आपको दो ही चीजें बतानी है कि गलत आप क्या मान रहे थे और सही क्या है। पता है? सिर्फ एक टेबल ही बनाना है कि स्टेंजा 4। ओके। I think we lost him.
Purvi, you can call him. Yeah, I'll text him. Hmm. आवाज आ रही है मेरी? Are you able to hear my voice? Yes? Yes, Oh, yes. all right. Okay, sorry, there is a network issue. So just what is the homework? I'm just repeating it out. You just need to put it up in a one table, up tabular format में बना दीजिए. Stanza 2, 3, 4, 5, 6. Okay, where you have a wrong belief and what should be your true belief. Simple as it is. Mhm. And then next week we'll be going pretty fast. Okay, because now you know. All right. Okay. So my target is to finish it everything the next week. And for those, the another one for the basic Jainism, we will be starting it out after the Diwali. Okay. So everyone is now knowing about the homework, right? Homework पता चल गया? Homework, Rishabh, homework पता चल गया? Good.